Hello students, today we are here to continue the discussion of the chapter Cyber Ethics, and in this chapter today we will discuss that open source philosophy and software licenses. Software license. So before starting the topics, what do you understand by the term open source? Because this is totally related to the open source philosophy, so we will be discussing all the concepts of the open source. So before starting our discussion, just relate your knowledge with the term open and source. What is source? What is open? A picture must appear in your mind, in your thinking, so that it will give you a relative meaning. Open क्या है और source क्या है? Open means that is free, that is not free, that is easily available, and source means what? Source means what? The origin means open is easily available and source means origin. So easily available origin of anything. For what? For softwares. We are discussing here for the softwares. So the open source software means their origin is available easily. Means how it is easily available means by paying some money or by free of cost. If that is available, that is related to the term open source software. So now just start the discussion. So broadly the term open source software is used to refer to those categories of software or the programs whose license do not impose much conditions. Means open source की जब आप बात करते हैं, it means they are not here to give you means to restrict you. बहुत ज़्यादा freedom आपको मिलता है. Whenever we talk about the open source, so we get lots of freedom. Okay, such softwares generally give users freedom to run or use the software for any purpose, to study and modify the program, and to redistribute copies of either the original or modified program. Up in softwares को what you can do, you can generally use means any purpose, for any purpose आप study के लिए कर सकते हैं. You can modify the programs, and after modification you can redistribute also. Without modification you can redistribute. means आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया या आपने परचेस किया, एनी however you have the copy of that software with you, what you can do, आप उसको आगे भी redistribute कर सकते हैं. And if you wanted to modify, if you wish to modify the codes and you have the capability, so surely you will modify. So after the modification you can redistribute, means the modification is allowed, and after the modification that distribution is also allowed. Okay. And what is the main thing, that without having to pay royalties to previous developer. So actually आपने original जहाँ से download किया, you need not to pay, you need not to inform them. Just what you have to, means you need not to pay them. आपको उन्हें pay नहीं करना. What you have to do, just आपने डाउनलोड किया या फिर आपने परचेज किया, जो भी आपने उनके कोड में कुछ चेंजेस करना चाहा किया, कुछ आपको उसको एनहांस करना था, एनी फीचर, just you enhanced, and again you are free to redistribute that. Now there are many categories of software that may be referred to as open source software. तो open source software की बहुत सारी categories है, we will be discussing here. So before starting, before going to those categories, just we will discuss the terminologies. There are two terms which are mainly used. Means before we talk about the various terms and definitions pertaining to the open world, you must be clear about two terms which are often misunderstood or misinterpreted. ये जो दो शब्द हैं इनके अक्सर गलत अर्थ ले लेते हैं हम लोग. मतलब we do not know the exact meanings, what is the exact context of these words. So those two terms are that free software and open source software. Means what is free and what is open source. So just continue on that. So the free software means the software is freely accessible and can be freely used, changed, improved, copied and distributed by all who wish to do so. मतलब आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं,
आप इनकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो ये करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड नो पेमेंट्स आर नीडेड टू बी मेड फॉर द फ्री सॉफ्टवेयर। तो अल्टीमेटली क्या है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंड यू नीड नॉट टू पे अ सिंगल पेनी। आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने। सो द डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर इज पब्लिश्ड बाय द रिचर्ड स्टॉलमैन। इन्होंने आपको एक डेफिनेशन दिया है। एंड व्हाट इज दैट डेफिनेशन? इज दैट फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। ओके, to understand the concept you should think of free as in free speech, not as in freeware. Free software is a matter of the user freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. More precisely, it refers to four kinds of freedom for the users of the software. तो जनरली क्या है कि ये जो टर्म फ्री यूज किया गया है, इसका मतलब है कि फ्रीडम टू रन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, स्टडी, चेंज, इंप्रूव एनीथिंग यू विश टू डू, यू कैन डू. This is the main concept and this is the main thing of this free software. And it refers to 4 kinds of freedom. जब भी हम free software की बात करते हैं तो आपको ये 4 तरीके के freedom देता है. And what is that? The freedom to run the program. किसी भी पर्पज के लिए आप उसको रन कर सकते हैं, मतलब किसी भी फील्ड स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी पर्पज स्पेसिफिक नहीं होगा. Whatever you want, wherever you want, you can, if that software is compatible for that. The freedom to study how the program works and adopt it to your needs. आप अगर ये स्टडी करना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम एंड हाउ इट इज एडॉप्टिंग टू योर नीड्स, मतलब आपके काम को ये किस तरीके से पूरा कर सकता है. अगर नहीं है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, यू विश टू डू, तो ये फ्रीडम भी आपको होनी चाहिए. ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू विश टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यू कैन ऑल्सो रीडिस्ट्रीब्यूट दैट. The next term, that is access to the source code is a precondition for this. अब source code कैसे अवेलेबल होगा, देयर आर सम कंडीशंस, सो दैट इज अनदर थिंग. बट इफ यू हैव द सोर्स कोड, यू हैव द फैसिलिटी टू मॉडिफिकेशन, यू हैव द फैसिलिटी टू एनहांस द कोड्स. नाउ द फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज सो यू कैन हेल्प योर नेबर्स. आपने जो कॉपी, सपोज आपने डाउनलोड किया उसको, अगर ये बड़ा सॉफ्टवेयर है और सबके बस का बात नहीं है डाउनलोड करना, एनीथिंग, एनी हाउ, इफ यू, या फिर आप जिनको देना चाहते हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ही इज नॉट एबल टू डाउनलोड, सो इफ यू हैव डाउनलोडेड ऑलरेडी, यू कैन शेयर टू देम ऑल्सो, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट टू एनी वन, नॉट ओनली योर नेबर्स, यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट टू एनी वन. तो ये भी फ्रीडम है आपको फ्री सॉफ्टवेयर की जब भी हम बात करें. सो दिस इज द फ्रीडम नंबर 3. एंड द लास्ट, the freedom number 4 is that the freedom to improve the program and release your improvements to the public so that the whole community benefits. मतलब आप इस प्रोग्राम में आपको लगता है कि कुछ इनहेंसमेंट किया जा सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो यू आर फ्री फॉर दैट ऑल्सो. और आप उसको करने के बाद यू कैन रिलीज दैट पब्लिकली, जिससे बाकी के लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके. एंड एक्सेस टू द सोर्स कोड इज अ प्री कंडीशन फॉर दिस ऑल्सो. वही बात है, सोर्स कोड अगर आपके पास है, जो भी कंडीशंस हैं आपको सोर्स कोड देने की, जो प्रीवियस ऑथर हैं उनसे लीजिए. और इफ यू विश टू इम्प्रूव, यू कैन. सो अ प्रोग्राम इज फ्री सॉफ्टवेयर इफ यूजर्स हैव ऑल दीज फ्रीडम्स. अगर उनको ये चारों फ्रीडम्स हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को फ्री सॉफ्टवेयर कहेंगे. अब नाउ व्हाट इज ओपन सोर्स? सो द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी फ्रीली यूज्ड in terms of making modifications, constructing business models around the software and so on, but it does not have to be free of charge. अब यहाँ पे बात क्या आती है, जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं. हाँ, सोर्स कोड आपका इसके साथ अवेलेबल होगा बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स. तो आप इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको सोर्स कोड मिलेगा, बट हो सकता हो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ना हो, इसके कुछ चार्ज भी हो, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ ओपन सोर्स की. तो उसका सोर्स कोड आपको मिलेगा, दैट इज गारंटी. द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर. जब आप सॉफ्टवेयर के लिए पे करेंगे, अगर पेड सॉफ्टवेयर है तो आप पे करेंगे, उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर का कोड मिल जाएगा. एंड इफ दैट इज फ्री, तो भी आपको इसके साथ सोर्स कोड मिल जाएगा. तो समटाइम यू हैव टू पे, सो इट इज नॉट एवरी टाइम फ्री. जब भी हम बात करते हैं ओपन सोर्स की, तो ये हमेशा फ्री नहीं है. ओपन सोर्स मीन्स द सोर्स कोड विल बी देयर, दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू. If you wish, you may download. Okay. And here the company constructing the business models around open source software may receive payments concerning support for the development. What is important to know here is that
इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपको सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होगा. नाउ द नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ ओपन सोर्स. नाउ व्हाट इज फिलोसफी टू ओपन सोर्स? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑफिशियली डिफाइंड by the open source definition at this URL. You may go and read there also. There are terms and conditions written there, rules and regulations are written there. So, and in short, what it means, what is the gist of this? Open source does not mean access to the source code. The distribution terms of open source software must comply with the following criteria. जब भी हम बात करते हैं ओपन सोर्स की, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि सोर्स कोड फ्री है, सोर्स कोड ओपन है, सोर्स कोड अवेलेबल है, नहीं. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया. ये क्राइटेरियाज भी फुलफिल करने चाहिए, तभी आप उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं. एंड व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज? सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को परचेस किया या फिर फ्री में डाउनलोड किया, तो आप को ये परमिशन मिल जाती है कि यू कैन रीडिस्ट्रीब्यूट, आप उसको आगे भी शेयर कर सकते हैं, या तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर या फिर उसका कोई पार्ट. अगर आपको चाहते हैं कि आप उसका कोई पार्ट शेयर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. सोर्स कोड. द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन इन सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल्ड फॉर्म. मतलब इस प्रोग्राम का सोर्स कोड भी आपको मिलना चाहिए. दैट प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड द सोर्स कोड एंड दैट मस्ट अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आप अगर उसको, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सोर्स कोड भी मिलेगा और वो कंपाइल्ड फॉर्म में भी मिलेगा. ओके, एंड आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं उसका सिर्फ सोर्स कोड रीडिस्ट्रीब्यूट करना, आप कर सकते हैं. आप उसका कंपाइल्ड फॉर्म में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. नाउ डिराइव्ड वर्क्स. The license must allow modifications and derived works and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software. So suppose आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, ठीक है, आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, तो आप मॉडिफिकेशंस करेंगे तो लाइसेंस चेंज नहीं होगा. डिराइव्ड वर्क का मतलब ये है कि लाइसेंस ऐसा होना चाहिए. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस का मतलब ये है कि आप उसमें अगर मॉडिफिकेशन करके रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लाइसेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज. License will be same and you can redistribute your derived work also. Now integrity of the author source code. तो आपको एक चीज मेंटेन करनी है कि जो आपको ऑथर का सोर्स कोड है, जो आपने डाउनलोड किया है या फिर जो आपने परचेस किया, आपको उसको इंटैक्ट रखना है. यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू चेंज दैट कोड. आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यू डू योर मॉडिफिकेशन बट पब्लिश दैट एज अ वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट नेम और डिफरेंट वर्जन फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर. ओके, जो भी आप मॉडिफिकेशंस करते हैं, आप कोई एडिशन करते हैं या फिर मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट शुड कैरी अ डिफरेंट नेम और वर्जन नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर. आप ओरिजिनल कोड को चेंज करके आप उसको एज इट इज पब्लिश नहीं कर सकते. सपोज किसी सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड किया, 4.5.1 वर्जन आपने लिया, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करके आप 4.5.1 के नाम से रिलीज नहीं कर सकते. बट यू कैन डू दैट 4.1.1 और 4.1.2. अगर आपने कुछ एनहेंस किया तो 4.5.2 या फिर आपने 1 के अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो व्हाटएवर. What just main thing is that you have to change the version. Now no discrimination against persons or a group. लाइसेंस सबके लिए एक होगा, चाहे इंडिविजुअल की बात की जाए, चाहे किसी ग्रुप की बात की जाए, चाहे किसी के लिए भी. अगर वो फ्री है तो फ्री होगा आपके, अगर वो पेड होगा तो सभी के लिए पेड होगा. So the license will be same for each and everyone. No discrimination against fields of endeavors. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपने जब बना दिया, जो जो आपके ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर है, अगर उसको फ्री में आप दे रहे हैं तो फ्री में दें. आप उनको आप उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, मतलब आपने अगर उसको फ्री में लिया या फिर आपने पे करके लिया, लेने के बाद अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरे फील्ड में यूज करना चाहते हैं, कुछ जिस तरीके से यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज दैट. लाइसेंस आपको ये भी परमिशन देना चाहिए, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज दैट distribution of license. This rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed. मतलब जिस लाइसेंस के साथ ये प्रोग्राम ओरिजिनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या फिर सेल किया गया था, अगर आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सेम लाइसेंस ही आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि ऑथर ने बेचा तो आपको लाइसेंस कुछ और मिलेगा, आप आगे बेचेंगे तो लाइसेंस कुछ और रहेगा. नहीं, सॉफ्टवेयर विल बी द सेम. आप उसमें मॉडिफिकेशंस करो ना करो, उसका एक पार्ट बेचो, बट द लाइसेंस टर्म विल बी द सेम. ओके, तो लाइसेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल्सो. लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट.
मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो लाइसेंस सिर्फ उसी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर उससे ड्राइव करके हम कुछ और बना रहे हैं या फिर उसका किसी एक पार्ट को लेके बना रहे हैं तो वो लाइसेंस वहां पे भी अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बार बार ये जो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट है इसी पे लाइसेंस काम करेगा, इसके अलावा ये लाइसेंस हमारा वैलिड नहीं होगा। नो, लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोडक्ट। सपोज जैसे गूगल ने एंड्रॉयड का ओएस बनाया तो गूगल आपका स्ट्रैक ओएस देता है हर कंपनी को। हर कंपनी क्या करती है, उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करती है। तो जो एंड्रॉयड ओएस जिस लाइसेंस के साथ आता है वो लाइसेंस चेंज नहीं हो जाता इफ द कंपनीज आर adding some additional things, so that license is not going to change। वो गूगल अलाउ करता है उन्हें, ठीक है आपको अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस करने हैं आप कीजिए, क्योंकि हर कंपनी अपने अपने सॉफ्टवेयर कुछ ऐड करती है क्योंकि उनका भाई अपना ब्रांड प्रमोशन है, व्हाटएवर द थिंग्स दे हैव। सो द सेम थिंग, ये किसी एक पार्ट पे नहीं है, वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर पे। वो जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर आता है वो किस नाम से आता है, आपको एंड्रॉयड ओएस के नाम से ही आता है ना। हर कंपनी उसको मॉडिफाई करती है बट स्टिल दैट कम्स विद कम एज द एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। बट ओरिजिनल ओएस जो गूगल लॉन्च करता है उसमें क्या एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होते हैं? नो। सो द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर्स। द लाइसेंस मस्ट नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शन on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be open source software. जो लाइसेंस आपको ओपन सोर्स के साथ मिलता है ये ऐसा आपको कंपेल नहीं करना चाहिए कि इसके साथ आप इस सॉफ्टवेयर के साथ जितनी भी चीजों को दे रहे हैं वो सब ओपन सोर्स ही होंगे या सब कुछ फ्री ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप जितना पार्ट ओपन सोर्स में रखना चाहते हैं आप उतना पार्ट ओपन सोर्स में रखिए, जितने पार्ट का आप सोर्स कोड नहीं देना चाहते आप उसको ओपन सोर्स में मत रखिए। मतलब अगर इसके साथ ही आपको दूसरा सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं बट यू डू नॉट वांटेड टू पुट इनटू द सेम लाइसेंस, सो यू आर फ्री टू डू दैट। देयर इज नॉट एनी बाउंडेशन एंड लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। So no provision of a license may be predicted on any individual technology or style of interface। मतलब जो भी आप लाइसेंस इशू कर रहे हैं उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ इसी लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं या सिर्फ यही लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, नो, इट इज द मैटर ऑफ choice of the developers। if they wish to use that code into another programming language they must be free, आप वो ऐसे यूज कर सकें। ओके, so this is the open source philosophy। Now a software which is free as well as open belongs to the category of FOSS। FOSS means that is free also and open source also। free मतलब आपको कुछ भी पे नहीं करना है। open source के साथ क्या बात हुई थी कि sometimes you have to pay for that also and sometimes that is freely available। तो यहाँ पे free and open source की जब भी बात आती है FOSS, it means कि that software is free, that and source code is also freely available। So that is free and open source। Okay, free means the freedom to use, freedom to copy, freedom to distribute, and open means technical progress, means आपके पास source code है तो आप उसको technically improve कर सकते हैं। If you wish, if you have the ability, surely will do। Now the definitions of that। After understanding the difference between the terms free and open, let us now proceed to our discussion on terminology and definitions pertaining to open source software। So open source software के लिए बहुत सारे definitions हैं, बहुत सारा common relative terms हैं जो हमें डिस्कस करना है। So now let's start that। तो first term which we are going to discuss that OSS and FLOSS। OSS means open source software। So open source की जब भी बात की जाती है तो what is that? open source में क्या होता है? sometime it is free, sometime it is paid, डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर। बट आपको क्या सोर्स कोड साथ में मिल जाएंगे। और अभी इतनी चीजें हमने देखी कि सोर्स कोड रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड होना चाहिए, मॉडिफिकेशन अलाउड होना चाहिए, मॉडिफिकेशन के बाद भी सेम लाइसेंस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, अभी हमने जो डिस्कस किया। लेकिन जब हम बात करते हैं FLOSS की, तो FLOSS मीन्स इसको आप फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स कह सकते हैं या फिर फ्री लिब्रे। लिब्रे जो है वो आपका स्पेनिश वर्ड है एंड जो लिब्रे है दैट इज द पोर्टीज वर्ड, पुर्तगाल का वर्ड है जो आपको क्या बोलते हैं इसको, पोर्टगीज वर्ड। तो both the words have the same meaning, they are for the freedom। तो जब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे फ्रीडम की बात आती है, इट मीन्स जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को FLOSS लाइसेंस के साथ, जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को FLOSS लाइसेंस के साथ पब्लिश करते हैं, इट मीन्स दैट इज कंप्लीटली फ्री, क्योंकि ये फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, सो यू कैन नॉट चार्ज। ओके,
जब बात आती FOSS की बात थी तो वहां पे भी क्या था, फ्री था, लेकिन जब FLOSS की बात आती है तो यहाँ पे क्या है, ये दिस इज कंप्लीटली फ्री। और FSS जब बात कर रहे थे हम फ्री एंड ओपन सोर्स की, तो वहां पे क्या है, आपको ऑथर को क्रेडिट देना था। जब भी आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे थे तो आप ऑथर को क्रेडिट देते, क्योंकि OSS की बात यही थी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। लेकिन जब हम FLOSS की बात करते हैं तो आप जो इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, यू आर नॉट बाउंडेड टू गिव द क्रेडिट टू द ऑथर। व्हाट यू कैन डू, आप उसका जो भी मॉडिफाइड वर्जन है आप उसको अपने नाम से पब्लिश करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू डू दैट। क्या आप ये आपका क्रिएशन है, आप ये बता के पब्लिश करना चाहते हैं तो करिए, यू आर फ्री। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज दैट GNU। व्हाट इज GNU? So GNU refers to the GNU is not Unix। अब ये क्या है, जब GNU लॉन्च हुआ था सेम टाइम हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी था सेम टाइम, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था। तो दैट्स वाई कंपनी ने अपना फुल फॉर्म ही बना दिया कि GNU इज नॉट यूनिक्स, इट इज नॉट द यूनिक्स। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनिशियली ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाते थे। सो द GNU प्रोजेक्ट emphasized on freedom, and the GNU project was initiated by Richard M. Stallman with an objective to create an operating system। तो initially ये सिर्फ operating system बनाते थे, and with time GNU project extended and now it is not limited to only an operating system। अभी क्या है, इनका प्रोजेक्ट बहुत ही एक्सटेंड कर गया। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते, ये बहुत कुछ बना रहे हैं आजकल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हम डेवलप कर रहे हैं। ये नाउ इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बात थी GNU की। GNU क्या है, GNU इज नॉट लिनक्स। ये भी बात करते हैं फ्रीडम की, ये भी आपको फ्री में चीजें अवेलेबल कराते हैं, बहुत सारी चीजों की फ्रीडम आपको मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज FSF। सो व्हाट इज FSF? FSF is the Free Software Foundation and this is also a non-profit organization. This is created for the purpose of supporting free software movement। जो फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट था उसको सपोर्ट करने के लिए इसको इस फाउंडेशन की नींव रखी गई, इस फाउंडेशन को बनाया गया। इसको भी बनाया रिचर्ड स्टॉलमैन ने और इसको फाउंड किया गया 1985 में टू सपोर्ट GNU प्रोजेक्ट एंड GNU लाइसेंस। जो GNU लाइसेंस है, जो GNU प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो GNU लाइसेंस के साथ ही आते हैं। सो इन 1985 इन्होंने इसको बनाया ताकि ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। नाउअडेज it also works on legal and structural issue for the free software community। जो free software community है उनके legal and structural issues को भी ये handle कर रहे हैं, means the free software foundation। so it is the foundation for your free softwares। now the next term is that OSI, this is open source initiative। so OSI is open source initiative। it is an organization dedicated to cause of promoting open source software, and Bruce Perens and Eric Raymond were the founders of OSI that was founded in February 1998। इसको क्यों डेवलप किया गया था? It is an organization dedicated to cause promoting open source software। open source software को प्रमोट करने के लिए डेवलप किया गया था। इसको फाउंड किया गया था फरवरी 1998 में। ब्रूस पेरनेस एंड एरिक रेमंड इन्होंने डेवलप किया था इसको, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। एंड नाउ द OSI स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड प्रॉपरली डिफाइंस द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए, उनको ये प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या क्या कैटेगरीज होनी चाहिए, क्या 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 कंडीशंस हैं। नाउ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डजंट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। द डिस्ट्रीब्यूशन term to open source software must comply with the open source definition by OSI। तो जब भी हम ओपन सोर्स की बात करते हैं वो सिर्फ उसका सोर्स कोड दे देने से वो ओपन नहीं होगा। जो क्राइटेरिया, जो कंडीशंस OSI ने डेवलप करी हैं वो उसको भी फुलफिल करना चाहिए, तो आप उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास we will continue the discussion of this chapter।